and at which point it will be fulfilled, that will be the equilibrium point. That is clear? Now we come to the second approach, that is MR and MC approach. Perfect competition. Let us first write the conditions of MR and MC approach. What are the conditions for producer's equilibrium? The first condition is, first we'll write conditions. First one is MR should be equal to MC. They should be equal to each other at that point. And the second one is that MC should be rising. Or you can write this condition in another way, that MC curve should cut MR curve from below. It is same. You can write in this way or this way. Same. So, to get this producer's equilibrium, these two conditions should be fulfilled. At which level? At any level of output where these two conditions are fulfilled, that will be the equilibrium level of output. Now we know the features of the curves. We will draw these curves. This side MC and MR, and this is level of output. In perfect competition, MR curve is, what is the shape of MR curve in perfect competition? Constant. It is parallel to X-axis. It is constant. That is MR curve. And it is equal to AR. So MR is equal to AR. This is the MR curve. Now marginal cost curve. Marginal cost curve is U-shaped curve. So we will draw a U-shaped curve. This is marginal cost curve. Now we have to see कि कहाँ ये दोनों condition fulfill हो रही हैं. Our first condition is MR should be equal to marginal cost. I think this point, जो जहाँ पे दोनों कर्व intersect कर रहे हैं वहाँ पे condition fulfill हो जाएगी. So at this point MR is equal to MC, that is OL level of output. क्या सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है? एक और पॉइंट है, because both the curves are intersecting here. So that is the second point where our first condition is fulfilled. Now, what is the second condition? MC should be rising. दोनों पॉइंट जहाँ पर बराबर हैं, वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए. क्या ये कंडीशन इस पॉइंट पर फुलफिल हो रही है? नहीं, because here marginal cost is declining. It is not rising. It is declining. And at this point, marginal cost is rising. Or you can say the marginal cost curve should cut MR curve from below. When MC curve will cut the MR curve, MC will be rising. So you can write MC is rising or MR curve is cutting MR curve from below. The same thing. So it means both the conditions are being fulfilled at OM level of output. Here only first condition is fulfilled. The second one is not fulfilled. So this is not the equilibrium level of output. Equilibrium level of output is OM. Now why this is not the equilibrium level of output and why this is only the equilibrium level of output? Let us explain it. Here, when the producer is producing OL level of output, the cost is more. Before this level of output, the cost is more and revenue is less. अभी तक producer को profit मिला ही नहीं है. He wants to earn profit. शुरू किया है उसने, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, income कम हो रही है.
बट उसको उम्मीद है कि आगे अगर मैं और प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा. So with this intention, he continue with the production activity. As he increases its production, now revenue becomes more and cost become less. Cost starting reducing. So the gap between cost and revenue increases. Clear? So जैसे जैसे उसका cost नीचे आती है, उसका profit बढ़ने लगता है. और यहाँ से यहाँ तक जितना भी गैप है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बीच जितना भी गैप है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट. दिस इज द एरिया ऑफ प्रॉफिट. सपोज प्रोड्यूसर इस लेवल पर है, क्यू लेवल ऑफ आउटपुट. इस लेवल ऑफ आउटपुट पर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करेगा. ही इज अर्निंग प्रॉफिट. Cost is more, sorry, revenue is more, cost is less. He is earning profit, but he knows कि अगर वो और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसका प्रॉफिट और बढ़ने वाला है. तो अगर उस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो उसका इतना प्रोडक्शन उसको मिल रहा है, this amount of profit he is earning. Clear? उसे उम्मीद है कि अभी अगर मैं और प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा. Suppose he reaches to the same level of output, so this much area of profit will be added. So the profit is increased. Now he is earning more profit. But after this level of output, if he continues his production, then what will happen? Cost will increase, revenue will be less. Now the firm will start incurring losses. So this gap will be equal to loss. So nobody wants that. So the producer will not go beyond this level of output, and that is the equilibrium level of output. जिस level of output से producer आगे नहीं जाना चाहता है. क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि उसी level पर उसको maximum profit मिल रहा है, and that is known as equilibrium level of output. So according to this approach, at this level of output, our both conditions are fulfilled. So this is the point of equilibrium level of output. Is it clear? Thank you. बीच में आ सकती है तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या क्या डेफिनेशन आती है. सबसे पहले बार्टर. बार्टर का मतलब ही क्या है? कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी. ठीक है. बार्टर सिस्टम वाकई में अच्छा नहीं था, तभी तो हमने बार्टर को एकदम छोड़ दिया और हमने क्या पकड़ लिया? बार्टर को छोड़ के क्या पकड़ लिया? मनी बैंकिंग, मनी पकड़ लिया है ना धीरे धीरे. लेकिन पहले जैसे आज नोट होते हैं, आज सिक्के होते हैं, पहले ऐसे नोट सिक्के नहीं थे. पहले हमने मनी किसको माना था? गोल्ड से भी पहले पर्ल्स या कोई मतलब ऐसी कोई भी जो प्रेशियस है, जो इजीली अवेलेबल नहीं है, उसको हम क्या मान लेते थे? उसको हम रत्न हो गया, पर्ल्स हो गए, या मतलब जो मोती मिलता है, ऐसी चीज जो मुश्किल से मिलती है उसको हम किसके रूप में यूज करते थे? मनी के रूप में. लेकिन वो भी डिफिकल्ट था. तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या इवॉल्व हुआ? मनी. और जानते हो हम लोग जब छोटे थे तो बैंक का यूज इतना ज्यादा नहीं होता था. नोट ज्यादा चलते थे. कहीं भी जाना है नोट लेके जाना ही पड़ेगा. कहीं भी जाना है कॉइन्स लेके, 1 पैसा 2 पैसा, तुम लोगों ने तो शायद देखा नहीं होगा, 5 पैसा 10 पैसा, हम लोग पैसे और रुपए लेके जाते थे तब कुछ खरीद पाते थे. लेकिन आजकल मान लो अभी किसी का फोन आ गया कि हमको जाना है दिल्ली, हम तुरंत बैग उठा के चल सकते हैं. हमारे पास ATM कार्ड है. मान लो आज हम नहीं निकाल पाए, हम प्लेटफॉर्म पे पैसे निकाल लेंगे, नहीं तो उस शहर में जाके निकाल लेंगे. आए ना समझ में? तो अभी तो मनी से भी क्या बढ़ गए आगे. मनी यूज नहीं हो रहा आजकल. आजकल क्रेडिट मनी ज्यादा यूज हो रहा है. आया समझ में? डेबिट मनी और क्रेडिट मनी भी कह सकते हैं. जो मैंने पैसा अपने बैंक में जमा किया उसको हम डेबिट कर लेते हैं ATM कार्ड के थ्रू, और हम कहीं इंडिया में, वर्ल्ड में, हम कहीं भी अपना पैसा निकाल कर यूज कर सकते हैं यदि हमने अपना पैसा बैंक में जमा किया. ओवर ड्रॉ भी कर सकते हैं. करते हैं ना क्रेडिट कार्ड के थ्रू. हमारे बैंक में उतना पैसा नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो हम ढेर सारे रुपए की परचेजिंग कर सकते हैं. आए समझ में? तो हम मनी से भी आगे बढ़ चुके हैं. अब देखो बार्टर इकोनॉमी. सबसे पहले
बार्टर इकोनॉमी की जब भी क्वेश्चन आएगा कैसा आएगा, व्हाट इज बार्टर इकोनॉमी, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर इकोनॉमी। 3 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। व्हाट इज बार्टर इकोनॉमी, एक पैराग्राफ में बताओ। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर इकोनॉमी, फिर तीसरा क्या बताओ, हाउ मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ, मनी आने से बार्टर इकोनॉमी के ड्रॉबैक्स कैसे दूर हो गए, मतलब मनी के द्वारा कैसे फैसिलिटी मिल गई है जो बार्टर सिस्टम में हम नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले क्या क्या ड्रॉबैक्स है, पहला देखो ये डेफिनेशन है बार्टर इकोनॉमी की, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। किसकी डेफिनेशन है, बार्टर की। जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी कंडीशन लिखी जाए, सही, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जैसे 1 रुपया है, कोई ये पेन 1 रुपए का है और ये पेन 45 रुपीज का है, ये पेन 5 रुपए का है, कौन महंगा है? कैसे बता पाए, क्योंकि ये भी रुपए में बताया, ये भी रुपए में बताया, ये 45 रुपए का है, ये 5 रुपए का है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? क्यों, कैसे हम बता पाए? क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। लेकिन पहले बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था, हमको पता ही नहीं था। अभी देखो हर बच्चे के दिमाग में ये रुपए का आता है, ये कम रुपए का आता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या बार्टर सिस्टम में अकाउंटिंग पॉसिबल था? आजकल हम अकाउंटिंग करते हैं ना। थर्ड, क्या मुझे जो चाहिए, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मेरे पास भैंस है, मुझे गेहूं चाहिए, मैं किसी से गेहूं लेने गई हूँ लेकिन उसको भैंस नहीं चाहिए, क्या हम आदान प्रदान कर सकते हैं? क्या मैं उसको भैंस दे के गेहूं ले सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मेरी भैंस नहीं चाहिए। लेकिन अब आजकल क्या है, मैं भैंस को बेचूंगी, मेरे को मनी मिलेगा, फिर मनी से मैं क्या ले लूंगी, गेहूं ले लूंगी, चावल ले लूंगी, जो लेना है वो ले लूंगी। तो अभी क्या पॉसिबल है, जो चाहे हम ले सकते हैं, मनी दे सकते ले सकते हैं। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे पेमेंट जो फ्यूचर में किए जाते हैं, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड पेमेंट? ऐसे पेमेंट जो फ्यूचर में किए जाते हैं। जैसे मैं अपने हर महीने थोड़े रुपए कटवाती हूँ स्कूल में, जीपीएफ में, जब मैं रिटायर होंगी मुझे पूरे पैसे विद लोन इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैंने इस महीने गई बैंक में 30,000 जमा कर दिए, 2 महीने बाद लेने जाऊंगी, विद इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। ऐसे सभी पेमेंट जो फ्यूचर में मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल था? बार्टर सिस्टम में भैंस लेने जाएंगे, 2 महीने बाद 2 भैंस मिलेंगी क्या? वो हो सकता है वो भैंस लेके क्या हो जाए, या क्या भैंस डबल होगी क्या? मान लो तुमने किसी को 10 किलो गेहूं दिया और तुम जब 2 महीने बाद वापस लोगे तो हो सकता है गेहूं क्या हो चुका, सड़ गया, लेकिन मनी कभी सड़ती नहीं। ठीक है, फ्यूचर में पेमेंट कब इजीली पॉसिबल है? जब मनी, ठीक है, आया ना पॉइंट समझ में। फिर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी सेम पॉइंट है। अभी जैसे मान लो मुझे 30,000 गवर्नमेंट दे रही है, मैं 20,000 खर्च करूंगी, 10,000 बैंक में रखूंगी, ठीक है, मेरे पैसे कहाँ स्टोर हो रहे हैं? बैंक में स्टोर हो रहे हैं। कल को मान लो मुझे घर खरीदना है या मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मैं क्या करूंगी? मैंने वैल्यू स्टोर करके रखी है बैंक में, मैं निकालूंगी इजीली, क्या करूंगी? पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग कैसे स्टोर करते थे? कैसे? गेहूं रखेंगे, चावल रखेंगे, और जिसके मान लो बाढ़ आ गई, पूरा गेहूं खत्म, चावल खत्म। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तुमने पैसा बैंक में रख दिया, बैंक में क्या है? सुरक्षित है। तुम जब चाहो, यदि तुम 10 साल बाद भी जाओगे तो तुम्हारा पैसा क्या होगा? वापस मिलेगा। बस तुमको आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी कि तुम वही पर्सन हो जिसने पैसा जमा किया था, वही पर्सन लेने आया है। ठीक है, ये आया समझ में, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, अभी तुम्हें ये समझ में आ गया ना बार्टर सिस्टम और मनी में क्या फायदा है? एक बच्चा और बच्चों, एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी लेने को तैयार रहता है। किसी मान लो ये पेन खरीदने जाओगे, ठीक है, उसको मनी दोगे, वो फट से पेन दे देगा। एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्पेशलाइजेशन, पहले क्या होता था,
किसान, मुझे याद है हम अपने मामा के गांव में जाते थे, किसान लोग क्या करते थे, अपने लिए गेहूं भी उगाते थे, अपने लिए कॉटन भी उगाते थे, अपने लिए गन्ना भी उगाते थे, सब चीज उगाते थे, क्योंकि उनको सब चीज साल भर जरूरत पड़ेगी। अब नहीं, तुम्हारे खेत में गन्ना अच्छा होता है, गन्ना उगा लो, गन्ना बेचो, मनी लाओ और उस मनी से कपड़े खरीदो, उस महीने से चावल खरीदो, उस महीने से कुछ भी खरीदो। तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। हमको जो अच्छे से उगाना आता है वो उगाओ। जैसे मुझे टीचिंग आती है, टीचिंग करके मैं पैसे कमा के मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, ठीक है। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यदि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या हम बिना मनी के लगा सकते हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ढेर पैसा चाहिए, ढेर रॉ मटेरियल, बड़ी बड़ी मशीन खरीदनी है, बिना मनी के पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो रहा है मनी आने से, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है, लोग पहले से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, पहले से ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड हो रहा है, ज्यादा कमोडिटीज का ट्रेड हो रहा है। बार्टर में जो बहुत सी चीजें सड़ जाती थी उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता था, बार्टर में आजकल मिल रहा है। लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, पैसे लेके जाओ, जो चीज जहां पसंद आए, जो चंडीगढ़ में अच्छी मिलती है चंडीगढ़ में ले लो, जहां अच्छी और चीप मिलती है वहां से ले लो। देश हमारी सेटिस्फेक्शन कहाँ ज्यादा अच्छे से पूरी होती है, कब? जब हमारे पास पैसा हो और हम पैसे को स्टोर करेंगे तो वो खराब नहीं होगा। हम बैग में स्टोर कर सकते हैं, हम अपने घर में भी स्टोर करेंगे रुपए और सिक्के, तो वो खराब नहीं होगी। स्टोर ऑफ वैल्यू है। आया कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? ये बच्चा बात नहीं कर। अब इधर देखो फंक्शन, ये एक अनदर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी, सेकेंडरी, अदर फंक्शन। वही मैंने अलग से मोटा मोटा इसका लिखा है। केवल प्राइमरी आएंगे तो प्राइमरी लिखना है, सेकेंडरी नहीं लिख देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सेकेंडरी आएंगे तो केवल सेकेंडरी लिखना है। आया समझ में? फंक्शन पूरे आजकल आते नहीं, या प्राइमरी आएंगे या सेकेंड, और यदि मान लो पूरे आ गए तो छोटा छोटा सब लिख देना। सबसे दूसरा लगा एंड मेजर ऑफ वेल्थ, दो फंक्शन। मतलब प्राइमरी पूछे गए तो सेकेंडरी मत लिखना, सेकेंडरी पूछे गए तो प्राइमरी मत लिखना। तो प्राइमरी में कौन से दो है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वेल्थ। अब केवल दो आए, 4 नंबर क्या है, इसका मतलब अंदर भी कुछ लिखना पड़ेगा। केवल हेडिंग डाल दोगे तो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। अंदर लिखने के लिए सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी लेने जाओगे, मनी क्या है? इंटरमीडिएटरी है, उसके बिना आप कुछ नहीं ले सकते। कुछ भी लेने जाओगे, मान लो हम बॉम्बे से यहाँ आए, हमको एसी का टिकट चाहिए या रेलवे का टिकट चाहिए, एयर का टिकट चाहिए, पहले क्या चाहिए? पैसे चाहिए। कुछ भी खरीदने के लिए मनी क्या है? माध्यम है। मनी के बिना हम कुछ खरीद नहीं सकते। कुछ भी एक्सचेंज करना है तो मनी चाहिए। आया कंसेप्ट समझ में? फिर इसी में मनी होगा तो टाइम क्या होगा? कम बचेगा। यदि मान लो मेरे पास सोना है, पहले सोना बेचना पड़ेगा, फिर मनी हाथ में आएगा, तब हम कुछ खरीद पाएंगे। सबसे बढ़िया क्या है? मनी। आया समझ में? यदि हमारे जेब में मनी है, कहीं भी जाओ टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, फटाक से जाओ कुछ भी खरीद के ले आओ। थर्ड, क्लियरर ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जब तक मनी है तब तक चॉइस है। हमारी जेब में मनी है, तुम बाजार गए, तुम्हारे पास 100 रुपए, जब तक मनी जेब में है 100 रुपए, तब तक तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम दुकान में घूम रहे हो, मेला में, कि मैं चाट खाऊं कि मिठाई खाऊं, ठीक है, या वीडियो गेम खेलूं, जब तक मनी खर्च नहीं किया। एक दुकान पे गए, तुमने वीडियो गेम खेला, पूरे 100 रुपए खत्म कर दिया, ऑप्शन खत्म। मनी जब तक जेब में रहता है तब तक तुम्हारे पास क्या है? ऑप्शन। मान लो मनी तुमने खर्च खा पी के खत्म कर दिया, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। सबको आ गया समझ में? वेयर ऑप्शन से क्या मतलब है? ठीक है, तो आपके पास चॉइस है। जब तक मनी है तो क्या है? चॉइस है। तुम जो चाहो, तुम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो बच्चे को पढ़ाओ, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन मनी खत्म, आ गया ना समझे? फिर तुम बार्गेन भी कर सकते हो, तुम्हारे पास मनी। तुम्हारे पास चावल है, उसको चावल नहीं चाहिए, वो बोलेगा मेरे को ज्यादा चावल दो तभी दूंगा, वहाँ बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन मनी है तो तुम क्या कर सकते हो? बार्गेन भी कर सकते हो। देखो ये मैं तुम्हें पॉइंट्स इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अंदर का याद करने में दिक्कत आती है, इसलिए कुछ एक कुछ वर्ड याद कर लो तो तुम इसको
क्या कर सकते हो, बड़ा करके। बहुत सी चीजें जो ज्यादा सरल होती है ना उनको लिखना कठिन होता है, तो एक एक पॉइंट याद कर लो कि बियरर ऑफ ऑप्शन के बारे में लिखना है, सेव टाइम ऑफ एनर्जी लिखना है, एक्सचेंज करने में इजी हो जाता है, कुछ भी खरीद के ला सकते हैं, फिर तुम उसको बड़ा कर करके लिख सकते हो। मेथड ऑफ वैल्यू, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, ये पेन 45 रुपीज का, ये पेन 5 रुपए का, किसकी वैल्यू ज्यादा, कैसे पता चला? क्योंकि हमने दोनों को रुपए में नापा, मनी में। मनी नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता ये अच्छा, ये महंगा है और ये सस्ता है, ये ज्यादा वैल्यू रखता है। अब जैसे कंप्यूटर, कलर टीवी, व्हाइट टीवी, कौन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कौन किसकी वैल्यू ज्यादा है? कलर टीवी की, क्योंकि कलर टीवी ज्यादा रुपए का आता है। तो जैसे तुम शुगर लेने गए, मैंने देखो एक एग्जाम्पल लिखा है, तुम भी अपने मन से ले सकते हो। शुगर मान लो लेने गए, कंप्यूटर लेने गए, कौन ज्यादा, किसकी वैल्यू ज्यादा है? कंप्यूटर की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब शुगर सस्ता है, शुगर की रियल वैल्यू कम है, कंप्यूटर की रियल वैल्यू ज्यादा है। तो यदि किसी की वैल्यू नापना है तो मनी के टर्म्स में ही नाप सकते हैं, ठीक है? हीरा ज्यादा महंगा या गोल्ड? हीरा। इसका मतलब हीरा ज्यादा वैल्यूएबल है ना। यदि हम एक बच्चे को बोलेंगे तुमको हीरा चाहिए या गोल्ड, वो क्या नापोगे लेगा? बच्चा मतलब समझदार बच्चा,